हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन निकिता's एकेडमिक वॉयज। आज हम यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बैठते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, इसके कैरेक्टर्स और प्रोविजंस क्या है न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का। ये बहुत बार पूछा गया है एनपीई 1986। उसके बाद दूसरा आपका होता है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ भी आपका पूछा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बारे में आपको बताना है। एंड देन यू हैव टू डिस्कस इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इंडियन एजुकेशन कमीशन इज नथिंग बट कोठारी कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन क्या हो गया आपका? कोठारी कमीशन 1964 से 1966। इसकी क्या क्या प्रोविजंस है, रिकमेंडेशंस दिए गए थे, वो डिस्कस करने हैं आपको। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडियन एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशंस। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1964 से लेकर 1966 के बीच में हुआ था। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन। कोठारी कमीशन, the Kothari Education Commission, also known as Indian Education Commission, was appointed by Government of India on 14th of July 1964. It was established under the leadership of Daulat Singh Kothari. He was also the chairman of UGC, University Grants Commission, consisted of 17 members. The primary aim was to formulate new policies that would ultimately lead to overall development of India's educational sector. For this commission, for this, the commission gave numerous recommendations to standardize the education pattern in India. Why Kothari Commission formed? So what are the reason behind forming the Kothari Commission? The reason behind forming the Kothari Commission was to address the extensive number of challenges regarding education in India. So to address the extensive number of challenges regarding the education in India, it was appointed to address concerns as lack of moral, spiritual values, no character formation. So these are some reasons of forming the Kothari Commission. So to address the extensive number of challenges regarding education in India, it was appointed to address concerns such as lack of moral, spiritual values, no character formations. You can write number 1, number 2, spiritual values, number 3, no character formation. Number 4, low literacy rate. Number 5 is unequal or inaccessible education. Number 3 is poor quality of education. Number 4, lack of policies regarding education, outdated curriculum and education system, poor quality of teaching in educational institutions, inadequate significance of education system. Number 8 is to adequate importance to agriculture. Objectives of Kothari Commission 1964 to 66. What are the objectives of Kothari Commission 1964 to 66? Towards the end of the third 5-year plan, जब third 5-year plan end हो रहा था, towards the end of third 5-year plan, it was to review education system comprehensively, to initiate a new and more determined effort at scholarly reconstruction. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट स्टिल लाइक ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हो कि टू रिव्यू एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करना कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, पूरी तरीके से, so that to initiate a new and more determined effort at its scholarly reconstruction. दूसरा हो गया formulating and educational policies. आप educational system को review कर रहे हो और फिर उसके बाद educational policies को formulate कर रहे हो and patterns को to applied at all aspects and stages and recommended same to Government of India. ये formulate किया गया educational policies को, pattern को apply किया गया to all aspects और stages and also recommended same thing to Government of India also. अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में क्या लिख सकती हूँ? मेरिट्स में लिखो मास्टरली पीस ऑफ वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन. It was presented a comprehensive report of educational problems in context to national needs and aspirations. तो comprehensive report जो है वो present किया गया of educational problems, जितने भी educational problems face कर रहे हैं students in context to national needs, जो national needs है and aspirations है उसके basis पे. Third is made a realistic approach to link education to socio-economic, cultural and spiritual aspects of Indian life. It made a realistic approach to link the education to socio-economic and cultural and spiritual aspects of Indian life. It recommended reasonable and respectable scales of pay to all categories of teachers subject to periodical revisions. The next thing is about demerits of Kothari Commission. So demerits क्या है Kothari Commission का?
कोठारी कमीशन नॉट एड्रेस रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो कोठारी कमीशन के थ्रू जो है रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस नहीं किया गया था, ये एक डिमेरिट लिख सकते हो। दूसरा, द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ स्कूल, जो हेड स्कूल का पोजीशन है, इट वाज लेफ्ट अनडिसाइडेड बाय द कमीशन। तो जो पोजीशन होगा स्कूल ऑफ हेड का वो अनडिसाइडेड था, सो इट वाज लेफ्ट अनडिसाइडेड बाय द कमीशन, वो डिसाइड नहीं किया गया कि स्कूल के जो हेड है वो हेड ऑफ द स्कूल का पोजीशन कौन लेगा। द कमीशन कमिटेड अ मिस्टेक इन प्लेसिंग संस्कृत ऑन अ पार विद अरेबिक। सो स्कूल द कमीशन क्या किया, दे कमिटेड अ मिस्टेक इन प्लेसिंग संस्कृत on a par with Arabic. Next thing is in demerits, the views of commission on the medium of instruction was not only conflicting but also controversial. So जो view था commission का with regarding to medium of instructions, ये ना तो सिर्फ conflicting था but also controversial था. So this is about merits and demerits of Kothari Commission. Next thing is related to the recommendation of Kothari Commission. So what are the recommendation of Kothari Commission? It was to improve the whole educational system. पूरे education system को improve करने की बात करी गई थी in India. They were related to areas, जैसे कि कौन-कौन से areas थे that are recommended for the recommendation of Kothari Commission. It was aim of education. आखिर education का aim क्या था? Methods of teaching. Teaching methods क्या होनी चाहिए? Women education, education of women, textbook, curriculum. Curriculum is nothing but syllabus. Free language formula, distance education, vocational education, educational structures and standard of education, welfare of students, students के welfare के बारे में, selective admissions, ठीक है, guidance and counseling, guidance and counseling, being a teacher, मैंने बताया था कि teacher क्या होता है, guider भी होता है, counseling भी, counselor भी होता है. But here we are talking about the recommendation, guidance and counseling होनी चाहिए, supervision and inspection of institutions, moral and religious education, then teacher education, adult education, work experience, establishment of universities, university autonomy, higher education enrollment, administrative reforms लाना, addressing effects in entire education, sorry, addressing defects in entire education, पूरे education में क्या defect है उसको address करना, evaluate करना. So there are kind of 23 recommendations that they provided. I'm going to discuss about few of them. क्योंकि सारे recommendation लिखोगे तो 6 pages हो नहीं पाएंगे. I'm telling it again. Pay attention. Aim of education, methods of teaching, education of women, textbook, curriculum, 3 language formula, distance education, vocational education, educational structure and standards, welfare of students, selective admission, guidance and counseling, supervision and inspection of institutions, moral and religious education, teacher education, adult education, work experience, establishment of universities, university autonomy, higher education enrollment, administrative reforms, addressing defects in entire education and evaluation. Important recommendations में आप क्या लिख सकते हो? Pre and compulsory education, जो कि बहुत ही important है related to education. Emphasized girls education, focused on OBC, tribal people, PWC sections, etc. or marginalized group also. To promote social justice for all children up to 14 years according to RTE Act 2009. तो आप free and compulsory education में ये सारे point लिख सकते हो. Emphasize girls education, focused on OBC, tribal people, PWD section. To promote social justice and for all children up to 14 years according to RTE 2009. आप क्या करो, 1 नंबर देके फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लिखो, ब्लैक पेन से आप अंडर कर दो एंड देन पुट 1 2 3 4 पॉइंट. सो राइट इन पॉइंट वाइज. यूनिवर्सिटी लेवल रिफॉर्म्स, आप यूनिवर्सिटी के लेवल पर रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हो कोठारी कमीशन में. इट्स सजेस्टेड टू अडॉप्ट 3 लैंग्वेज फार्मूला एट स्टेट लेवल. तो यूनिवर्सिटी लेवल रिफॉर्म्स में जो है अडॉप्ट करने की बात करी गई थी, सजेस्ट की गई थी 3 लैंग्वेज फार्मूला को स्टेट लेवल पे. प्रमोशन ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज. 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या है आपका? मदर टंग, दैट इज रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट. जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहां पे फॉस्टर द इंग्लिश प्रमोशन, तो इंग्लिश को प्रमोट करने की बात करी गई. फोकस ऑन सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पे फोकस करो ताकि सबको इक्वल एंड फेयर जो है जस्टिस प्रोवाइड हो. फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन, तो आपको फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड हो. किसको? गर्ल्स को, ओबीसी को, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन एंड ट्राइबल पीपल. So focus on justice, social justice. Number 4 is reforms to improve education at university level. Again, I have already mentioned this here that you're going to create some uniform reforms on university level, suggested to adopt 3 language formula, promotion of Hindi, English, regional language to non-Hindi speaking states, and foster English promotions. You can also add that reforms to improve education at university level by including PG level research, training, providing adequate libraries, laboratories, and funds. आप क्या कर रहे हो? रिफॉर्म्स ला रहे हो ताकि एजुकेशन में इंप्रूवमेंट है यूनिवर्सिटी लेवल पे. किसके थ्रू? पीजी लेवल के कोर्स को, रिसर्च को ऐड करके
ट्रेनिंग ऐड करके, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लाइब्रेरीज प्रोवाइड करना, लेबोरेटरीज और फंड्स प्रोवाइड करना, education for inculcation of national values. So inculcation of national values, education for inculcation of national values. First हो गया introducing moral, social and spiritual values. क्या introduce कर रहे हो? moral value, social value and spiritual values को. क्या encourage करो students को? ताकि meditate करें group में. तो जब आप inculcation of national values की बात करते हो तो you are encouraging students to meditate in group. आप इंक्लूड कर रहे हो रिलीजन्स को ऑफ द वर्ल्ड इन देयर सिलेबस, आप रिलीजन्स कल्चर्स इन सभी चीजों को इंक्लूड कर रहे हो सिलेबस में, ताकि एक बच्चा जो है होलिस्टिकली ग्रोथ करे और वो नेशनल वैल्यूज में ऐड हो, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अबाउट एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो स्टूडेंट्स के। मेक साइंस अ बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। सो साइंस को जो है एक बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर बनाओ। वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करो, वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करके आप क्या कर रहे हो? टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ाओगे या फिर वोकेशनलाइजेशन करवाओगे तो बाद में स्टूडेंट्स उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके यूज करेंगे, इंडस्ट्री में जाके। इम्प्रूविंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। आप साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल में के एजुकेशन में। सो दिस इज एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है? साइंस को बेसिक कॉम्पोनेंट की तरह एजुकेशन एंड कल्चर में ऐड करके, वोकेशनल एजुकेशन को ला करके, ताकि आप इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीड्स को प्रोवाइड कर सको, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च प्रोवाइड कर सको यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन में। एजुकेशनल प्लानिंग करो और फाइनेंसिंग करो। आप एजुकेशनल प्लानिंग करोगे और फाइनेंसिंग करोगे तभी जा करके आपका जो नीड है फॉर इफेक्टिव एजुकेशन प्लानिंग, allocation of adequate resources and increase public investments in education वो फुलफिल होगी, ठीक है। तो प्लानिंग करोगे एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस प्रोवाइड करोगे। सो नीड फॉर इफेक्टिव एजुकेशन प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज। आप रिसोर्स जो है वो एडिक्वेट रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे। इंक्रीज करोगे पब्लिक के इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन में। मल्टीपल एंट्री एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मल्टीपल एंट्री एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इन एजुकेशन pathways to accommodate diverse learner needs and ensure lifelong learnings। आप मल्टीपल एंट्री प्रोवाइड कर रहे हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स जो है आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन गेन करने के लिए आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है दैट एनी स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन। सो एजुकेशन पाथवेज इज टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्नर्स नीड्स एंड इंश्योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप लाइफ लॉन्ग जो है लर्न कर सकते हो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ला के दो। इम्प्रूव करिकुलर रिफॉर्म्स सिलेबस रिफॉर्म्स जो है इम्प्रूव करो। टीचर की ट्रेनिंग को अच्छा करो। इवेलुएट करो टीचर के लर्निंग को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। evaluating system को evaluate करो। This is all about quality improvement. Quality improved by the students as well as teachers also. Impact क्या पड़ेगा कोठारी कमीशन का? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। आप एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करो। अब मैंने यहाँ पे ईडी टू द हैंड लिख दिया है, इसको आप एजुकेशन ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। सो यू आर एक्सपैंडिंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला रहे हो। स्टैंडर्ड्स जो है आप मेंटेन कर रहे हो, करिकुलम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो। प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना irrespective ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या हो रही है आपकी? डिसेंट्रलाइज हो रही है, सेंट्रलाइज नहीं है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, और डिसेंट्रलाइज है विद डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, being it online, offline, or there are different source। globalize भी हो रही है education, so decentralized हो गया education का। establishment of educational institutions जो है वो establish हो रहे हैं। so these are some impact of कोठारी कमीशन। conclusion में आप क्या लिखोगे? in conclusion, कोठारी कमीशन plays significant role in shaping the trajectory or the journey of education in India. Its recommendations aimed at expanding access, improving quality in education, ensuring relevance, laid the base for few reforms in education sector। आपने उसमें से बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे और कुछ को आपने एक्सप्लेन किया। By advocating for equal opportunities, curriculum reforms, and promotion of science and technology, the Commission addressed key challenges facing the education system. Overall, its impact was profound, setting the stage for development of a more inclusive, modern, and responsive educational framework in India. This is all about कोठारी कमीशन, जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, 1964 से लेके 1966 तक। Let's come to the national curriculum framework। मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ आज, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। आप फिर से बैठ जाएं और फिर से जा करके उसको सुने। सो यू आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स।
बहुत इजी लेवल में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको मेंशन किया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका क्या है? So national curriculum framework is nothing but it was developed by educational experts and policy makers in India. National curriculum framework जो है educational experts लेके आए थे, policy makers लेके आए थे इंडिया में। इनिशिएट किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। अब इसका डेफिनेशन लिख दो, सॉरी फुल फॉर्म लिख दो। विद इनपुट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एजुकेटर्स। अब वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ इनपुट लिया गया था एंड तब जाकर के एनसीईआरटी ने इस इनिशिएटिव को लेके आया एनसीएफ 2005 को। अब आपको क्या करना है, जब आप आंसर देख रहे हो, मैंने कहीं कहीं अंडरलाइन भी किया है, आप लिखने के टाइम में कहीं कहीं आप अंडरलाइन कर दो, जैसे डेवलप्ड बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स, इसको अंडरलाइन कर दिया या फिर इसको ऐसे बना दिया, तो ये आपके आंसर को एनहांस करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इस तरह के, ठीक है। Let me start it again. NCF 2005 was developed by educational experts and policymakers in India. It was initiated by NCERT, National Council of Educational Research and Training, with inputs from various stakeholders, including educators, researchers, policymakers, and members of civil society. It was officially released by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. It serves as a guiding document for curriculum development and educational reforms in the country. Guiding document for curriculum development and educational reforms in the country. It outlines the vision, goals, principles, and strategies for transforming the education system to meet the needs of learners in 21st century. आप ऑलमोस्ट सब में क्या देख रहे हो, सारे कमीशन का क्या एम है कि आप स्टूडेंट्स के नीड को मीट कर रहे हो, ठीक है। आई मीन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मेरे नीड को पूरा किया जा रहा है, फुलफिल किया जा रहा है इन द 21st सेंचुरी। तो एनसीएफ 2005 रिसेंटली आई है, राइट। सो 2005 कौन लेके आया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या सर्व करती है? एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट सर्व करती जाती है फॉर करिकुलर डेवलपमेंट। आप करिकुलर को डेवलप करने की बात कर रहे हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स को चेंज करने की बात कर रहे हो कंट्री ऑफ इंडिया में। ये क्या आउटलाइन करती है? विजन को, गोल्स को, प्रिंसिपल्स को, स्ट्रैटेजीज को। किस चीज के लिए? एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वाई टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? सो दैट यू कैन मीट द नीड्स ऑफ लर्नर्स इन 21st सेंचुरी। इजी है। चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जो थे, ये चेयरपर्सन थे विद 35 मेंबर्स, एनजीओज, एनसीईआरटी मेंबर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। पब्लिश कौन किया? एनसीईआरटी ने। सीरीज कौन सी थी? फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सीरीज है। बिफोर एनसीएफ 2005 कितने सारे थे? टोटल 3 थे, ऐसे टोटल 4 हो गए। पहले 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में। ओके, 75, 88, 2000, 2005, 75, 88, 2000, 2005, 75, 88, 2000, 2025. Published by NCERT. Chairperson Professor Yaspal and with 35 members, NGO, NCERT members, teachers, etc. Ministry कौन सी थी? University, Union Education Ministry, Government of India. Union Education Ministry, Government of India. पर्पस क्या था? टू सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस और करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्कूल्स इन इंडिया। ओके, so to serve as a guidelines for syllabus, textbooks, teaching practices for schools in India. नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? नीड्स। नीड क्या है एनसीएफ का? एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना नीड है, क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रमोट करना, क्रिएटिविटी इंक्रीज करना, इंक्लूसिविटी इंश्योर करना, डाइवर्स सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अडेप्ट करना, डाइवर्स सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, एनसीएफ कल्चरल, डाइवर्स सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट रेलेवेंट एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम, आप फ्लेक्सिबल और रेलेवेंट करिकुलम को क्रिएट करो। तो नीड्स क्या हो गया एनसीएफ का? मॉडर्नाइज एजुकेशन सिस्टम, फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, encourage creativity, ensure inclusivity, adapt to diverse social cultural context, create relevant and flexible curriculum. करिकुलम क्या होता है? करिकुलम इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ स्कूल। करिकुलम ही एक ड्राइविंग फैक्टर है, ड्राइविंग फोर्स है स्कूल का। इट कैन डिफाइन एज फ्रेमवर्क विद इन विच टीचिंग इन स्कूल इज डिजाइन। एक करिकुलम, एक सिलेबस जो स्कूल की बनती है, वो फ्रेमवर्क सेट करती है विद इन विच द टीचिंग इन स्कूल इज डिजाइन। जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, वो आपकी करिकुलम के बेसिस पे होता है। स्टूडेंट should be conceptualized as structure, sorry, it should be conceptualized as a structure that articulate required experiences. Okay, it should be conceptualized as a structure that articulates required experiences. जो भी experiences required है उसको articulate करना। ऑब्जेक्टिव क्या होगा एनसीएफ का? ऑलराइट, पहला हो जाएगा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो लर्नर है उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे हो। सो दिस इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव।
emphasize values education, आप वैल्यू एजुकेशन पे ज्यादा emphasize करते हो। डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल के अकॉर्डिंग आप डेवलप कर रहे हो। टीचर के एम्पावरमेंट को इनहांस करना, एडवोकेट फॉर फ्लेक्सिबल एंड रेलेवेंट करिकुलम, प्रमोट इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, आप इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो। असेसमेंट प्रैक्टिसेस रिफॉर्म कर रहे हो। शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, ये बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होना चाहिए। प्रमोट सोशल जस्टिस, अब तो पहले भी देखा कि सोशल जस्टिस प्रमोट करने की बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाने की बात की जा रही है। नेशनल इंटीग्रेशन, डेवलप रैशनल आउटलुक एंड प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन दी होल प्रोग्राम, आप कंटिन्यूटी लेके आओ, कंसिस्टेंसी लेके आओ पूरे प्रोग्राम में, रैशनल आउटपुट लेके आओ। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लाइफ नीड्स, करिकुलम जो आपका होना चाहिए वो लाइफ के नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। So let me revise it again. Objectives of NCF: learner-centered approach, emphasize values education, develop 21st century skills, enhance teacher empowerment, advocate for flexible and relevant curriculum, promote inquiry-based education, reform assessment practices should be well integrated, promote social justice, democratic value and national integration, develop rational outlook and provide continuity in the whole program. Curriculums should be based on life needs and aspirations of the people. Now next is merits and demerits of NCF 2005. अब आपको 16 मार्कर में लिखना है तो आप ऐड तो करोगे। सो आई हैव मेड 2 columns of merits and demerits of NCF. First is emphasizes critical thinking, creativity. Emphasizes number 1 दे दिया to make it look good, critical thinking and creativity. Demerits क्या है? Implementation challenges due to diverse educational context. जो diverse educational context है उसकी वजह से challenges implementation challenges, तो implementation नहीं हो पा रहा है, ये इसमें challenges face कर रहा है। Promotes holistic development of learners is merit. Merit क्या है? Promotes holistic development of learners. But demerits में uneven distribution of resources for effective implementation. Implement करने के लिए फंड चाहिए, फंड मिल नहीं रहा ठीक से, और अगर मिल भी रहा है तो uneven distribution हो रहा है रिसोर्सेज का, राइट। नाउ advocates for flexible and learner centered curriculum. मेरिट्स में क्या हो गया? इट एडवोकेट्स फॉर फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। डीमेरिट्स लिमिटेड फोकस ऑन वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। अब एनसीएफ में क्या हो रहा है? आपका लिमिटेड फोकस हो जा रहा है वोकेशनल और प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर, बट मेरिट्स क्या हो जा रहा है? एडवोकेट्स फॉर फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। फिर आपका मेरिट्स क्या है? फोस्टर्स वैल्यू एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, आप क्या फोस्टर कर रहे हो? वैल्यू एजुकेशन और सोशल जस्टिस को। डीमेरिट्स क्या है? पोटेंशियल रेसिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोचेस। अगेन मेरिट्स में आएगा आपका सपोर्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था वही आपका मेरिट डिमेरिट में आ रहा है। इट सपोर्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। डिमेरिट्स में डिफिकल्टी इन रिकंसाइलिंग लोकल एंड नेशनल एजुकेशनल प्रायोरिटीज। नंबर 7 हो गया आपका प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर 21st सेंचुरी चैलेंजेस, आप अपने स्टूडेंट्स को जो 21st सेंचुरी की चैलेंजेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो। डीमेरिट्स हो गया रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है अपने स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को, एवेल्युएट करना पड़ेगा। सो दिस इज सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। लेट मी रिवाइज इट अगेन। मेरिट्स में हो गया emphasize critical thinking and creativity, promotes holistic development of learners, advocates for flexible and learner centered curriculum, fosters values education, social justice, supports interdisciplinary learning and inquiry based education, prepares students for 21st century challenges. In demerits, we have implementation challenges due to diverse educational context, uneven distribution of resources for effective implementation, limited focus on vocationalization and practical skills, potential resistance from traditional teaching approaches, difficulty in reconciling local and national educational priorities, requires continuous monitoring and evaluation. Next is curriculum areas, school stages and assessments. क्या-क्या curricular areas है? School stages and assessments. Main areas क्या होगा आपका? The main areas relevant for curricular planning have remained remarkably stable for a long time. So even after major changes in social expectations and academic study of different broad disciplines, schools will have to play a major role in ensuring that children are socialized into a culture of self-reliance, resourcefulness, peace-oriented values, and health. So these are some curricular areas. इसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एरिया को, ट्रेडिशनल में और अदर एरियाज में। ट्रेडिशनल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस। अदर एरियाज में आपका आर्ट एजुकेशन,
health and physical education, education for peace, habitat and learning, work and education. अब आपको क्या करना है, you just have to explain a bit by bit for traditional and other areas in national curricular framework. मैथमेटिक्स प्रोसीजरल लैंग्वेज नॉलेज प्रोवाइड होते हैं, रोट लर्निंग होती है कहीं कहीं, जैसे आपको फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक लगाना होता है, लिमिटेड रियल लाइफ एप्लीकेशंस, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन लिमिटेड है मैथमेटिक्स में, प्रोसीजरल नॉलेज है, रोड लर्निंग है, अरिथमेटिक लॉजिक है। लैंग्वेज क्या हो गया, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए यू नीड ग्रामर, यू नीड वोकैबुलरी, यू नीड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी होनी चाहिए, लिमिटेड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए। साइंस में क्या होता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस में, मेमोराइजेशंस बहुत होती हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज हो, केमिस्ट्री हो, ट्रेडिशनल डिसिप्लिन चाहिए होता है, लिमिटेड इंक्वायरी एंड एप्लीकेशंस इज नीडेड इन साइंस। सोशल स्टडीज में क्या होता है, historical events, geographical facts, political systems, limited critical analysis. So these are basic and simple points that you can write in areas related to national curriculum framework. So these four captures the essence of each traditional curricular areas within the NCF 2005 framework. Other areas क्या होगा आपका education में with NCF, art and education, health and physical education और education for peace. आर्ट एजुकेशन तो आपको पता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी मालूम है, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन तो एक सब्जेक्ट ही होता है क्लास 12 में। तो आर्ट एंड एजुकेशन में क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन होता है, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, एस्थेटिक एप्रिसिएशन, इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, सो यू आर इंटीग्रेटिंग आर्ट्स विद अदर सब्जेक्ट्स। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में फिटनेस एंड वेलबींग, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हेल्थ एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट। एजुकेशन फॉर पीस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, diversity and tolerance, citizenship education, peace building skills. These are education for peace, conflict resolution, diversity and tolerance, citizenship education, peace building skills. Next is habitat learning. Habitat learning में environmental awareness लेके आना, sustainable living, eco-friendly practices, outdoor education. Habitat learning, जहाँ आप रह रहे हो, the place where you live is your habitat. Okay, so habitat and learning, environmental awareness is needed. आप जहाँ पे भी रहते हो, यहाँ वहाँ से आपको वहाँ के एनवायरनमेंट का अवेयरनेस होना चाहिए। सस्टेनेबल लिविंग, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करो, आउटडोर एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। वर्क एंड एजुकेशन में क्या आएगा आपका, वोकेशनल स्किल्स, करियर एक्सप्लोरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। अभी बहुत सारे वोकेशनल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेजेस में, उसमें एंटरप्रेन्योर्स जो है आपका, इसका एक सब्जेक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड BCA, उसमें एक सब्जेक्ट था आपका एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इज आल्सो इंक्लूडेड। vocational skills, career exploration, practical learning experience. The next is you have to write the conclusion. So NCF 2005 highlights its vision for transforming education system in India. So NCF का मेन काम क्या था कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग लर्नर्स। तो इसका एम्फेसिस क्या हो रहा था, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग लर्नर्स हु आर इक्विप्ड विद द स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज नीडेड टू थ्राइव इन 21st सेंचुरी। आपको 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, उसको नर्चर करना लर्नर्स के एजुकेशन में, एंड उसको ये वैल्यू प्रोवाइड करना जो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग उनको चाहिए टू थ्राइव। So it recognizes the diverse needs, backgrounds of students and advocates for a holistic approach to education that fosters critical thinking, creativity, social responsibility, etc. So in conclusion, you could write NCF 2005 serves as a roadmap for educational reforms or educational transformation, guiding curricular development, teaching practices, assessment strategies where you take feedback and you evaluate your students. It aims to empower learners to become active learners and informed citizens, aware citizens capable of contributing positively to their communities and world at large. So this is about National Curriculum Framework. अगर आप इसमें इतना लिखोगे, that is more than enough. Now let's come to NPE, New Policy Education. New Policy Education में characteristics and provisions को आप add करोगे। NPE 1986 क्या represent करती है, significant revision। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिवीजन की बात की जा रही है, एक्सपेंशन की बात की जा रही है एजुकेशनल गोल्स को एंड स्ट्रैटेजीज आउटलाइन इन 1968 पॉलिसी। तो जो 1968 में जो पॉलिसी आई थी उसको आउटलाइन करना और उसको रिवाइज करना एंड एक्सपैंड करना, ये गोल है।
So it addressed new challenges and aspirations of changing Indian society. अभी जो इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही है उसमें न्यू जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एस्पिरेशंस आ रहे हैं, उसको एड्रेस करना, ये काम था एनपीई 1986 का। आई नो आप सोच रहे होगे कि एनपीई 2020 भी आया है, बट द थिंग इज एंड नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 जो है वो रिसेंटली आया है, बट आपके सिलेबस में एनपीई 1986 बहुत बार पूछा है। आप मेंशन इसको करो, बट इफ यू फील कि आपको ऐड करने हैं तो आप 2020 को भी कुछ ऐड करके लिख सकते हो। आई शो यू हाउ। So NPE was formulated by Government of India under the then Prime Minister Rajiv Gandhi and Education Minister PB Narasimha Rao. तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे और पीबी नरसिम्हा राव उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था नेशनल पॉलिसी एजुकेशन को। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मेजर्स। ये किस मेजर से इम्प्लीमेंट किया गया? जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमने इससे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन देखा, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को इसमें इम्प्लीमेंट किया, इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंटेड थ्रू मेजर्स सच एज यूएसई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एक्सपेंशन की बात हो रही है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, जो एजुकेशनल प्लानिंग है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इन एजुकेशन। So it is formulated by the then Prime Minister Rajiv Gandhi ji and Education Minister P.V. Narasimha Rao, implemented through measures such as universalization of secondary education, expansion of vocationalization education, strengthening of educational planning, and administration promotion of value-based education and integration of Indian culture and heritage in education. Next is evolution of national policy of education. आखिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हम पढ़ रहे हैं, वो इवॉल्व कैसे हुई? पहले आपका आया था एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, ठीक है, जो हम इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन पढ़ते हैं 1964 टू 66। दूसरा आया हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि है 1968 का। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 1986 जो हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक और आया था 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और अभी जो रिसेंटली आया है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। Now mention about the similarities among these three, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी 1968, 1986 एंड 2020। इसके बीच में सिमिलैरिटीज क्या हैं? आखिर हम 1968 ना पढ़ के एग्जाम में हमें 1986 पूछा जा रहा है। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन 68, 86 एंड 2020? कॉमन सिमिलैरिटीज हैं एक्सेस टू एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। 68 में एजुकेशन कैसे एक्सेस की जा रही थी? कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन थी। 1986 में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ था। सो यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर यहाँ पे 2020 में क्या हो रहा है आपका? यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, आपको यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है 2020 में प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक। ये है एक्सेस टू एजुकेशन। 1968 कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, 1986 यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री, 2020 यूनिवर्सल एक्सेस टू from preschool to secondary education. Now, what is the teacher training in 1968? Improving teacher quality. 1968 में टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करी गई। 1986 में establishment of DIETs of teacher training. 2020 में continuous professional development for teachers. Continuous professional development की बात की जा रही थी टीचर्स की 2020 में। और 86 में establishment of diets of teacher training and 68 में improving teacher quality. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की यूज कैसे हो रही है? 1968 में रिकॉग्निशन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, 1986 इंट्रोड्यूस इट इन एजुकेशन, एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया 1986 पॉलिसी को, एंड 2020 को इंटीग्रेटेड एट ऑल एजुकेशन लेवल। आपने देखा कि यूनिवर्सल एक्सेस की बात हो रही है 2020 वाले में। सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन एक्सेस टू एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव। 1968 का ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, यूनिटी को प्रमोट करना। सो प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, इट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 1968। 1986 का क्या था ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना सबको, रिड्यूस डिस्पैरिटीज। अब डिस्पैरिटीज जो है वो रिड्यूस करने की बात कर रहे थे 1986 में, और
एजुकेशन जो है सबको प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। 2020 जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था, स्किल बेस्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी एजुकेशन। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करी गई थी। इसमें ये डिफरेंस है कि 1968 थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहे थे, 1986 री इन्फॉर्म्ड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, एंड 2020 एम्फेसिस मल्टीलिंगुअलिज्म विद फ्लेक्सिबिलिटी। अभी के टाइम में मल्टीलिंगुअलिज्म पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है विद फ्लेक्सिबिलिटी। इफ यू आर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यू वांट टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, तो आपके करिकुलम में उस स्टेट की उस लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाना चाहिए। बट पहले 68 में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा था, जिसमें आपके मदर टंग रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश को दिया जा रहा था। और 1986 में री इन्फोर्स द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को री इन्फोर्स किया गया था। 2020 में मल्टीलिंगुइज्म को विद फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एम्फेसिस किया गया। अब फीचर्स क्या लिखोगे? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो है ना वो सेम होता है। तो एनपीई 1986 में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा या फीचर्स पूछा, राइट, सेम पॉइंट। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, आप जो है इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके ऐसे ब्रैकेट दे करके यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूई, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, देन इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन के बाद आप लिख सकते हो करिकुलम रिफॉर्म, टीचर डेवलपमेंट, ठीक है, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो इसका फ्लो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इंश्योर्स एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन एट ऑल फॉर ऑल। सो यूईई क्या होता है, इसका एम क्या है? इंश्योर एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, तो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन जो है वो सबको मिलने चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एम्फसाइज स्टैंडर्ड क्वालिटी इन एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो क्या इंट्रोड्यूस करने की बात करेगी? वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। करिकुलम में रिफॉर्म लेकर के आओ, emphasize a modern and child-centered curriculum, teacher development, focus on improving teacher training and education, equalization of educational opportunities, address disparities through policies. नेक्स्ट द फीचर्स ऑफ एनपीई। ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा ही था, इसमें बस आप ऐड कर दो जो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, जैसे रोल ऑफ एजुकेशन एंड इट्स एसेंस, प्रोवाइड्स नेशनल पर्सपेक्टिव्स, डायरेक्शंस इन एजुकेशन। आप नेशनल पर्सपेक्टिव्स और डायरेक्शन को ऐड कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, सोशल इंप्रूवमेंट लेके आना, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, एजुकेशन जो है इक्वालिटी के बेसिस में आना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन एंड इट्स एसेंस। सो दीज आर सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन और प्रोविजंस क्या था? रिकमेंडेशन और प्रोविजंस ये भी सिमिलर ही है, जैसे यूनिवर्सल एक्सेस, ensuring education for all children at the age this or like vocationalization in education, introduce vocational course at secondary level, curriculum flexibility होना चाहिए और adaptation। तो curriculum जो है वो flexible हो और adaptable हो, adapted curriculum to local needs and practical knowledge, providing practical skills, teacher training established DIETs for better training and improved teacher quality and effectiveness। Principles क्या होगा आपका 1986 का? इक्विटी लेके आओ, क्वालिटी लेके आओ। इक्विटी इज टू इंश्योर इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, क्वालिटी इज टू फोकस ऑन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। घुमा फिरा के एक ही पॉइंट सब जगह है। रेलेवेंस, रेलेवेंट हो, मेक एजुकेशन मोर पॉलिटिकल एंड रेलेवेंट। एफिशिएंसी लेके आओ, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस, रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करो फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। जितना रिसोर्स ऑप्टिमाइज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव एजुकेशन लेके आओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एनपीई 1986। कंक्लूजन में क्या दोगे आप? NPE 1986 aim to revolutionize the educational landscapes in India. So ये revolutionize करने की बात कर रहा था education landscape को इंडिया में by focusing on universal elementary education UEE, improving quality standards, introducing vocational education, modernizing the curriculum, enhancing teacher training, and addressing educational disparities. Its recommendations emphasize universal access to education, integration of vocational skills, adaptation of curriculum to local contexts, and enhancement of teacher quality through specialized training institutes. ठीक है, फिर आप क्या बोल रहे हो कि ओवरऑल जो एनपीई 1986 है, it laid the foundation for a more inclusive, relevant and quality oriented education system in India. So NPE 1986 किस चीज का फाउंडेशन लेके आया? More inclusive, relevant and quality oriented education system को। तो again I'm repeating conclusion. Conclusion गलती से भी मत भूलना एग्जाम में। It aimed to revolutionize the education landscapes in India by focusing on UEE,
improving quality standards, introducing vocational education, modernizing the curriculum, enhancing teacher training, addressing educational disparities. Recommendations emphasized universal access to education, integration of vocational skills, adaptation of curriculum to local needs or local context, and enhancement of teacher quality through specialized training institutes. Overall, NPE 1986 laid the foundation for a more inclusive, relevant, and quality-oriented education system in India. This is all about NPE 1986 characteristics and provisions. ठीक है? So try to write all these points in your copy, जिसके वजह से आपको क्या होगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके 6 पेज भी बढ़ जाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स का हो सके तो फ्लो चार्ट बना लेना. एक पेज आप फ्लो चार्ट के लिए भी यूज कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी स्मॉल पॉइंट्स दिए हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेशन, टीचर ट्रेनिंग, प्रिंसिपल में इक्विटी, क्वालिटी, रिलेवेंस एंड एफिशिएंसी, और कंक्लूजन में तो ओवरऑल सब कुछ को मिला करके जो है आपका आंसर बन जाता है. अब लास्ट में मैं आपको एनपीई 2020 के बारे में बता रही हूँ. ठीक है? एनपीई 2020 आपका क्या है, अभी रिसेंटली जो आया है, तो आप थोड़ा सा एनईपी 2020 को भी बता देना. its aim is to introduce several changes in the Indian education system from preschool to college level. NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower. So NEP 2020 का एम क्या है, इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना. ठीक है? और ये इसलिए लाया गया ताकि इंट्रोड्यूस किया जाए सेवरल चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल का हो. इट प्रोवाइड्स स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन. ये स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड देयर मेनी मोर. तो मैंने यहाँ पे स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के बारे में बताया. एजुकेशन इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो एजुकेशन को इंडिया में प्रोवाइड कराते हैं. पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी जो है आर्टिकल 45 और 39F, इन दोनों के अंडर में जो है ऐसा प्रोविजन लाया गया है फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन. सो आर्टिकल 45 एंड 39F of DPSP Part 4 has provisions for state-funded as well as equitable and accessible education. 42nd Amendment Act 1976 ये एक अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू मूव किया गया था एजुकेशन को फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट. आप कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन में देखे होंगे, तो उसमें 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था. पहले ये स्टेट लिस्ट में था. तो लिस्ट आपके 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो अभी एजुकेशन जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में है, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया. 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है एजुकेशन को इन्फोर्सिएबल बनाया गया, इन्फोर्सिएबल राइट अंडर आर्टिकल 21A. सो अंडर आर्टिकल 21A जिसमें आप फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज बीइंग मेड एज फंडामेंटल राइट्स विद द हेल्प ऑफ 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. और इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो मैंने पिछले शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया है आई गेस, या फिर पिछले यूनिट में मैंने बताया है आर्टिकल में ही. तो प्लीज चेक यूनिट नंबर 1 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. रिलेटेड लॉज क्या है आपके, आरटीई एक्ट 2009 है. प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स एनफोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स. तो लॉज में आपका आरटीई एक्ट 2009 आते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू ऑल चिल्ड्रन जो कि 6 to 14 ईयर्स के हैं, एंड इन्फोर्स करता है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सर्व शिक्षा इज मींस दैट यूनिवर्सल एक्सेस, सबको शिक्षा प्रोवाइड करने की बात की जा रही है. मिड डे मील स्कीम इसलिए लेके आया जा रहा है क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे न्यूट्रिशन मिलेगा, खाने के ही वजह से एटलीस्ट एनरोलमेंट जो है ज्यादा बढ़ेगी. एनबीएस स्कूल्स, केवीएस, यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशन आर अ रिजल्ट ऑफ एनपीई 1986. तो ये सारे जो हैं ये 1986 के ही रिजल्ट्स हैं, और ये 2020 में भी आगे प्रोसीड किया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट एनपीई 1986. और with the help of this I have completed कोठारी कमीशन, NCF 2005 and NPE 1986. ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 में. ठीक है? सो यूनिट नंबर 2 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस PYQ में पूछे गए हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, और जितने पार्ट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पार्ट 1, 2, 3, 4, यूनिट 1, 2, 3, 4 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन वो भी आपके हो चुके हैं. सो प्लीज गो to the playlist section and check all the questions because आपके exams 28th को हैं, and before that try to make short notes in your copy. All right, I'll come with a new video soon. Stay tuned. Bye bye. Take care.